આજે આપણે હિન્દીનો 8મો પાઠ ગુલમર્ગ કી ખિડકી સે એક રાત એ પાઠનો અભ્યાસ કરીશું. હવે પહેલાં તો આપણે જોઈએ કે ગુલમર્ગ શહેર છે એ ક્યાં આવેલું છે. તો ગુલમર્ગ શહેર છે એ કાશ્મીર રાજ્યના એક નાનું એવું શહેર છે, પણ હિલ સ્ટેશન પણ કહેવાય છે. એ લોકો ફરવા માટે વધારે પડતા ત્યાં જાય છે અને ત્યાંનું વાતાવરણ એટલું ખુશનુમા હોય છે કે ત્યાં ગરમીનો અનુભવ તો લગભગ કહી શકાય કે થતો જ નથી. એટલું સુંદર વાતાવરણ. અને આ પાઠમાં પણ આપણને કોઈ સ્ટોરી આપેલી નથી, પરંતુ ત્યાં ગુલમર્ગનું વાતાવરણનું જ વર્ણન કરેલું છે. ત્યાંનું પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય કેવું છે એનું જ વર્ણન કરેલું છે. અને લેખક મોહન રાકેશ જે ખુદ ગુલમર્ગ જઈ અને કઈ રીતનો અનુભવ કરે છે એની વાત કરે છે. હવે ગુલમર્ગ એટલે એવું સ્થાન નથી કે ત્યાં આપણે ઘણી બધી જગ્યા, ઘણા બધા સ્થળ પર આપણે ફરી શકીએ, પરંતુ ગુલમર્ગ છે એ આખું એ શહેર જ જોવાલાયક છે. ત્યાંનું વાતાવરણ છે એ જોવાલાયક છે. ત્યાં કોઈ અલગ અલગ સ્થાનો પર તમે ફરી શકો, હરીફરી શકો એવું નહીં, પરંતુ જે સ્થાને હો ત્યાં જ તમે એનું આખું પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય માણી શકો. ત્યાં એક એક ક્ષણે એમ કહેવાય છે કે વાતાવરણ બદલે છે. એક ક્ષણે કંઈક અલગ વાતાવરણ હોય છે તો બીજી જ ક્ષણે તમને કંઈક અલગ જ વાતાવરણ જોવા મળે છે. તો ત્યાંનું પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય એટલું સરસ છે કે જેને માણવું અને એની મજા લેવી, જેને પ્રકૃતિ પ્રેમી જે ખાસ હોય, પ્રાકૃતિક સૌંદર્યથી જેને ખુશી મળતી હોય જોઈને, તો એવા લોકોને ગુલમર્ગમાં ફરવું વધારે ગમશે. બાકી જે લોકોને માત્ર અલગ અલગ સ્થાનો ઉપર જવું, અલગ અલગ મંદિરોના દર્શન કરવા, એ રીતે ફરવાનો શોખ હોય તો એ લોકોને ગુલમર્ગ બિલકુલ પસંદ નહીં આવે. પરંતુ જેને પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય માણવાની ઈચ્છા હોય એ લોકો માટે ગુલમર્ગ એટલે એક પ્રકારે સ્વર્ગ કહી શકાય. એટલું સુંદર વાતાવરણ ત્યાં જોવા મળે છે. તો એની જ વાત આપણને મોહન રાકેશ જ્યારે ખુદ ગુલમર્ગ જાય છે તો ત્યારે એમને કેવો અનુભવ થાય છે એની વાત આપણને આ પાઠમાં કરે છે. અને ગુલમર્ગમાં વધારે પડતું શું જોવા મળે છે તો કે ખુલ્લા સપાટ લીલાછમ મેદાનો જોવા મળે છે. પછી દેવદારોના વૃક્ષો જોવા મળે છે. હવે દેવદારોના વૃક્ષો કેવા હોય છે તો કે એક તો એકદમ લાંબા અને એકદમ ઘટાદાર એટલા બધા નથી હોતા, એકદમ પાતળા એવા લાગે છે, પણ લાંબાઈમાં ખૂબ ઊંચા વધારે હોય છે. અને વૃક્ષોનો ઉપયોગ છે એ ઘણી જડીબુટ્ટી તરીકે પણ થાય છે, ઔષધિમાં પણ ઉપયોગ થાય છે. પછી જે ફર્નિચર બને છે તો એનું લાકડું છે એ સૌથી શ્રેષ્ઠ લાકડું કહેવાય છે દેવદારના વૃક્ષોનું. તો એ લાકડાથી મજબૂત ફર્નિચર બને છે અને મજબૂત પણ સારું કહેવાય છે લાકડું. તો એ કામમાં એ વૃક્ષો આવે છે. અને એ વૃક્ષો વધારે પડતા ઠંડા પ્રદેશમાં વધારે થાય છે, એટલે હિમાચલ પ્રદેશમાં, પછી હિમાલયની આસપાસ, તો એ બધી જગ્યાએ, કાશ્મીરમાં, તો એ બધી જગ્યાએ આ દેવદારુના વૃક્ષો છે એ ઠંડા પ્રદેશમાં વધારે જોવા મળે છે. જ્યારે એની પ્રકૃતિ ગરમ છે, એટલે કે ઔષધિમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે, ડાયાબિટીસ છે, બીપી છે, તો એ બધા રોગોમાં એના પાનનો ઉપયોગ કરી અને ઘણી જડીબુટ્ટીઓ પણ બનાવવામાં આવે છે. તો આ રીતે એ દેવદારના વૃક્ષો છે એ ફર્નિચર બનાવવામાં, પેન્સિલ બનાવવામાં, પછી આ રીતે જડીબુટ્ટી તરીકે, તો એ રીતે એનો ઉપયોગ થાય છે. તો વધારે પડતા ગુલમર્ગમાં એ વૃક્ષોનું પ્રમાણ ખૂબ જોવા મળે છે અને ખુલ્લા સપાટ મેદાનો જોવા મળે છે કે જ્યાં લોકો ગોલ્ફની રમતની મજા પણ ખૂબ માણે છે. તો ગોલ્ફની રમતના જે શોખીન લોકો છે એ લોકો પણ ગુલમર્ગ જવાનું વધારે પસંદ કરે છે. અને બીજું પ્રકૃતિ પ્રેમી લોકો છે, પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય માણવું જેને ખૂબ ગમે છે, તો એ લોકો પણ ગુલમર્ગ જવાનું ખૂબ પસંદ કરે છે. તો જોઈએ મોહન રાકેશ જે લેખક છે આપણા, તેમને ગુલમર્ગ જઈ અને કેવો અનુભવ થાય છે એની આપણને આમાં વાત કરે છે. તો પહેલા આપણે મોહન રાકેશનો परिचय જોઈએ. मोहन राकेश का जन्म 1925 में हुआ था, उनका निधन 1972 में. मोहन राकेश का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था. इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी. अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ. इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में MA तक शिक्षा प्राप्त की. तत्पश्चात DAV कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया. कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफा संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे. कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे. इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी,
आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है, यानी कि परिवेश नाम का उनका जो कहानी संग्रह है उसमें से लिया हुआ ये भाग है। इस यात्रा वृतांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया हुआ सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता, यानी कि एक बार जब गुलमर्ग जाते हैं एक बार, तब वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य उनसे भुलाया ही नहीं जाता, यानी कि एक बार देखकर जैसे बार बार वहीं पर जाए और वहीं का प्राकृतिक सौंदर्य को वे अपने अंदर समाया हुआ देखते हैं। तो इस तरह से उन्हें कहाँ कैसा अनुभव वहाँ पर होता है, इस बात का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। और हर बार जब भी स्कूल शुरू होती है, तब बच्चों के साथ जब भी ये पाठ हम करते हैं, तब लगभग बारिश होती है, ऐसा वातावरण देखने को मिलता है। और बच्चों को भी इस पाठ में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जो वर्णन यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का किया गया है वे बच्चे खुद भी अनुभव करते हैं। लेकिन इस बार ये परिस्थिति के कारण हम वे अनुभव नहीं कर पाए। कुछ जगह होती है जिन्हें आंख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है, यानी कि लेखक कहते हैं कि कुछ ऐसी जगह होती है कि जो आंख एक बार देखती है और फिर धीरे धीरे वे भूलती जाती है। यानी कि हम किसी जगह पर घूमने के लिए जाए तो एक बार जाना हमें वहाँ अच्छा लगता है, 2 बार जाना शायद अच्छा लगे, लेकिन बार बार अगर उसी जगह पर घूमने जाना हो तो फिर परिचित होकर भी हम उदासीन हो जाते हैं, यानी कि बार बार हमें एक ही जगह पर जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हर एक क्षण नया वातावरण देखने को मिलता है, इसलिए सभी लोगों को बार बार वहाँ जाने का मन होता है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट, और बस तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। यानी कि लेखक कहते हैं कि जब मैं पहली बार गुलमर्ग गया था, यानी कि किसी काम वश वहाँ गए होंगे, तो पहली बार जब वहाँ गए थे तो वे उन्हें कोई असाधारण यानी कोई अलग बात नहीं दिखाई दी, जैसे कि कहीं और ना हो और वहाँ पर हो, ऐसा कुछ अलग न दिखाई दिया। और उन्हें बस दिखाई क्या दिया तो कि एक खुला सपाट मैदान और देवदारों के झुरमुट, यानी कि देवदारों के समूह, वृक्षों के समूह देखने को मिले। इससे अधिक उन्हें कुछ भी वहाँ देखने को न मिला। तो तब लेखक को लगा कि जैसे बस 1 घंटे में तो वे पूरे गुलमर्ग को घूम आए। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। यानी कि जब दूसरी बार गुलमर्ग जाना होता है, महीनों वहाँ रहने को होता है, तब उन्हें पता चलता है, तब वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की एक एक क्षण का अनुभव वे करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि गुलमर्ग को 1 घंटे में या एक बार में तो क्या, बार बार अगर वहाँ पर जाए तब भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने पूरा गुलमर्ग देख लिया, क्योंकि एक एक क्षण पे वहाँ वातावरण परिवर्तित होता है। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के इस एक हिस्से के रूप में देखने लगता है। यानी कि लेखक कहते हैं कि यही कारण है कि गुलमर्ग में रहने वाले व्यक्ति की गुलमर्ग के साथ इतनी आत्मीयता यानी कि अपनापन हो जाता है कि वे खुद भी अपने आप को वहाँ के सपाट मैदानों का एक हिस्सा मानने लगता है, कि वे भी वहीं के वातावरण का एक भाग है। कांपती तितलियां, उड़ते बादल और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह, यानी कि वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की ज्यादा खूबी क्यों दिखाई देती है, तो कि कांपती तितलियां, यानी कि वातावरण इतना मनमोहक होता है कि तितलियां, रंग बिरंगी तितलियां उड़ती दिखाई देती है। उठते बादल, यानी कि कभी एकदम
बादल घिर जाते हैं, बरसाती वातावरण हो जाता है, और कभी कभी एकदम खुला आकाश दिखाई देता है, यानी कि बादल चले जाते हैं, एकदम खुला आकाश नजर आता है। बर्फ से चमकती पहाड़ियां, यानी कि बर्फ वर्षा भी बहुत होती है, तो बर्फ के कारण सभी पहाड़ियां भी एकदम बर्फ के कारण एकदम चमकती सी नजर आती है। इस तरह वहां रहने वाले लोग भी वहां से इतनी आत्मीयता कर लेते हैं कि वे भी उन पहाड़ियों, उन बादलों, उन तितलियों की तरह वे भी वहां के कोई हिस्सा हो, इस तरह से वे अनुभव करने लगते हैं। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है, यानी कि दूसरी ओर एक तरफ ये उठते हुए बादल है, बर्फ से जमी पहाड़ियां है, तितलियां है, और दूसरी ओर जहाँ पर लेखक खुद रहते हैं, यानी किसी होटल के या गेस्ट हाउस में रहते होंगे, तो वह उस विस्तार की बात करते हैं कि दूसरी ओर ये सारा विस्तार है कि जहाँ वे खुद रहते हैं, और वे सारे वातावरण को, उस विस्तार को अपने में समाया हुआ सा उन्हें लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ, यानी कि वे अपने आप में वे अनुभव करते हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों संध्या, यानी कि एकदम सुबह की किरणें जो होती है और संध्या का जो समय होता है, वे दोनों संध्याओं की बात कहते हैं, यानी कि खूब जल्दी सुबह उठो तो भी और संध्या के समय तो भी वे दोनों वातावरण इतने मनमोहक होते हैं कि लेखक खुद को उनका एक हिस्सा मानते हैं। घना कोहरा, यानी कि एकदम झाकड़ भरा हुआ वातावरण, कोहरे से भरा हुआ वातावरण, धुम्मस से भरा हुआ वातावरण, और पीली धूप, यानी कि एकदम तेज धूप वहां दिखाई नहीं देती। जब सूर्य निकलता है तो बस पीली धूप, यानी एकदम આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો પીળી एकदम नरम कूणी एवी कूणो एवो तड़को જ્યારે દેખાય છે, और सब कुछ, यानी कि ये सब कुछ उन्हें अपने आप में समाया हुआ सा लगता है। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचय होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहता है, यानी कि इसीलिए इतनी आत्मीयता वहां पर हो जाती है कि जब वे गुलमर्ग से चलता है, यानी कि वहां से जाने का समय आता है, तो वे खुद भी उस मैदान का एक हिस्सा था, इसलिए उसे अपने आप से बिछड़ने का एहसास होता है कि जैसे वे अपने आप से, अपने ही किसी रूप से वे अलग हो रहा है, ऐसा अनुभव उन्हें होता है। अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है, यानी कि अपने ही उस रूप से, यानी कि गुलमर्ग को वे अपने एक रूप की तरह मानता है, तो उससे हमेशा परिचित होते हुए भी वहां से जाना पड़ रहा है, इसलिए जैसे वह अपरिचित हो गया है, ऐसा उन्हें अनुभव होता है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, यानी कि गुलमर्ग में रहने वाले लोग जैसे दिन में भी सपने देखने लगते हो, ऐसे फूल की तरह खिल उठते हैं उनके स्वप्न। हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में, यानी कि उनके छतें भी, उनके सपने भी आकाश में विहर करने लगते हैं, यानी कि आकाश में विहरने लगते हैं। किस तरह? तो कि हरियाली के आर पार, वे सपने भी हरियाली के आर पार हो जाते हैं, लाल लाल छतों के ऊपर, यानी कि वहां पर ज्यादातर लकड़ी के मकान मिलते हैं देखने को, तो वे लकड़ी की छतें जो लाल लाल होती है, उनके स्वप्ने भी उससे भी पार हो जाते हैं। आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं, यानी कि उनकी आंखें भी एक एक क्षण बदलते हुए उस वातावरण को देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं और अलग अलग रंगों वाले फूल भी वहां देखने को मिलते हैं। वातावरण में नई नई कोंपले फूट उठती है, यानी कि जिस तरह से एक वृक्ष में जैसे ही वातावरण बदलता है तो नई नई कोंपले, यानी कि नई पत्तियां उगती है, तो उसी तरह वातावरण में भी जैसे नई कोंपली फूटी हो, ऐसा दिखता है। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है, यानी कि हर एक क्षण नया रोमांच, यानी कि अब क्या होगा, अब कैसा वातावरण होगा, इस बात की सृष्टि रहती है, यानी कि अब कब कैसा वातावरण देखने को मिलता है, इसकी दिलचस्पी सभी को रहती है। बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं, यानी कि वहां के सपाट मैदानों में लोग, सैलानियां जो वहां पर आते हैं, वे सभी बैठे हैं बादलों के पोर्टिको के नीचे। पोर्टिको यानी बरामदा या बालकनी हम कह सकते हैं। तो बादल को पोर्टिको कहा है, यानी कि बादलों में से जैसे बारिश
ऐसे देख रही हो नीचे बैठे हुए लोगों को, ऐसा बताया है। नीचे लोग बाहें फैलाए बैठे हैं, यानी कि उस बादलों में से कब वर्षा होगी और कब ये मैदान में बैठे हुए लोगों को वे भिगो देगी। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती है, यानी कि दूर दूर से उस मैदान में बैठे हुए लोगों को दूर दूर से सैलानी यानी कि मुसाफिर जो भी वहां पर आते हैं, जो घूमने के लिए आते हैं, वे घोड़े दौड़ाती नजर आती है, यानी कि घुड़सवारी का आनंद भी वहां लोग लेते हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर यहाँ तहाँ छिटके हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है, यानी कि रंगों के कुछ बिंदु, यानी कि मैदान में जो लोग बैठे हैं, रंग बेरंगी कपड़े पहने हुए जो लोग बैठे हुए हैं, उन्हें रंगों के बिंदु के समान बताया है, क्योंकि ऊपर से जो बादलों के पोर्टिको में से यानी कि बादलों में से जो बारिश देख रही है, झांक रही है, उन्हें तो ये सभी लोग रंग बेरंगी बिंदुओं जैसे लगते हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है, यानी कि उन बादलों में से सहसा यानी कि अचानक नन्ही नन्ही पानी की बूंदें, पारदर्शक यानी कि पानी की बूंदें गिरने लगती है, यानी कि बारिश होने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है, यानी कि रंगीन बिंदुओं जो लोग बागीचे में, जो मैदान में जो लोग बैठे हुए थे, उन सब पर वे बारिश गिरने के कारण वे सब अब सिहर जाते हैं, यानी कि ठंड के कारण एकदम सिहर जाते हैं और अपने आप को समेटने लगते हैं, यानी कि सभी लोग वहां से उठ उठकर अपने अपने घरों में, अपने अपने कमरों में जाने लगते हैं। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है, यानी कि जो हरियाली भरा हुआ वातावरण था, यानी कि एकदम हरियाली भरा मैदान था, बरसात अभी होने वाली थी, इसलिए वो वातावरण जो सुंदर था, लेकिन बरसात होने के बाद वे सारा वातावरण कैसे बदल जाता है, तो कि कुहासे में, यानी कि धुम्मस से भरा हुआ सारा वातावरण बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है, यानी कि मैदान पर बर्फ वर्षा होने के कारण ऐसी एक बर्फ की चादर छा जाती है कि मानो जैसे मैदान ने भी शर्मा कर चादर ओढ़ ली हो। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली हुई पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें, जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी, ऐसी ही कोमल, विस्मृत और निढाल, यानी कि अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है, यानी कि बर्फ वर्षा होने के कारण धुंध से भरा हुआ, कोहरे से भरा हुआ वातावरण दिखाई देता है और बेबस होकर फैली पगडंडिया यानी कि गुजराती में આપણે કહીએ તો કેડી જેવો જે રસ્તો, કાચો રસ્તો હોય તે, અને એને કની સાથે સરખાવેલી છે તો કે પતલી પતલી નરમ બાહે, તો કે જાણે કોઈ મનુષ્યની એકદમ પાતળી પાતળી બાહો હોય, બાજુ હોય, એટલી સરસ એ પગડંડીઓ દેખાઈ રહી છે। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेंगी, यानी कि जब तक बर्फ वर्षा होती रहेगी तब तक वे बाहें फैली रहेंगी, यानी कि तब तक उस पगडंडियों पर कोई मनुष्य या कोई प्राणी की आने जाने की ध्वनि सुनाई नहीं देगी। और किस तरह से फैली हुई है, तो कि कोमल, विस्मृत और निढाल, यानी कि एकदम सुकोमल, सुडोल लग रही है, विस्मृत यानी कि फैलाएगी, और निढाल यानी कि ठंड से भरी हुई, तो उस तरह वे बाहें, वे पगडंडियां फैली हुई दिखाई देगी। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा, यानी कि जैसे ही बर्फ वर्षा बंद होगी और सूरज फिर चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा, यानी कि जो फूलों पर भी जो बर्फ जम गया है वे भी पिघल जाएगा और नया फूल भी दिखाई देगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे, यानी कि जैसे ही सूर्य प्रकाश आएगा तो आकाश में भी जो बादल घिरे हुए हैं वे नन्हे नन्हे द्वीप बनकर अलग अलग दिखाई देंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टक जाएंगे, यानी कि भेड़ बकरियों के रेवड़ यानी कि झुंड, वे भी पगडंडियों पर टक जाएंगे, यानी कि वे जो पतली पतली पगडंडियां थी उन पर जैसे ही बर्फ वर्षा खत्म होगी भेड़ बकरियां चराने वाले भी उस पगडंडियों पर नजर आएंगे, टक जाएंगी, यानी कि वहां से भर जाएगी। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा, यानी कि फिर दिन जो हरियाली से भरा हुआ, लोगों की चहल पहल से भरा हुआ नजर आ रहा है, वे दिन फिर से जैसे रात की प्रतीक्षा करता सा, यानी कि रात को फिर से बर्फ वर्षा होगी और कोहरे से भरा हुआ वातावरण होगा तो वे एकदम शांति छा जाएगी, तो दिन फिर से जैसे रात की प्रतीक्षा करता सा नजर आ रहा है।
रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है, यानी कि रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। या ना ही लोगों की चहल पहल होगी, ना ही कोई भेड़ बकरियों का शोर होगा, ना ही कुछ भी दिखाई देगा, ना ही सैलानी यहाँ वहाँ घूमते नजर आएंगे। जैसे ही रात होगी तो दिन के समय जो वातावरण एकदम वाचाल यानी कि बातूनी लगता है, वे वातावरण फिर से एकदम शांत हो जाएगा। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसाती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। यानी कि अब लेखक जब खुद एक होटल के कमरे की खिड़की पर बैठे हैं, तो वहाँ की वो कहते हैं कि वो रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य और वहाँ की बर्फ वर्षा, यानी कि वहाँ की वर्षा का आनंद लेने की आनंद जो उन्होंने लिया था, वो कहते हैं कि वो रात में कभी नहीं भूल सकता। वो कहते हैं कि जब वे होटल की उस कमरे की खिड़की पर बैठे थे, तो दूर से एक बरसाती घटा उनकी ओर बढ़ रही थी। हम कभी कभी देखते हैं कि दूर कहीं बरसात होती हम देखते हैं, लेकिन हम जहाँ पर है वहाँ वर्षा होती हम नहीं देखते। तो उसी तरह धीमे धीमे वो वर्षा, यानी कि वो जो घिरा हुआ बादल था, वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुंचे और कब मुझे अपने में लपेट ले। यानी कि लेखक भी उस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब वे बरसाती घटा उन तक पहुंचे और कब उन पर बरस पड़े, यानी कि वो बरसात में वे भी भीग जाए और कब वहां तक वे बादल पहुंचे। बरसती घटा में घिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। यानी कि हम देखते हैं कि जब मौसम की पहली बारिश होती है तो बूढ़े, बच्चे, जवान सभी लोग वह पहली बारिश में नहाने का आनंद लेते हैं। तो उसी तरह लेखक भी यहाँ होटल में आए हुए हैं गुलमर्ग में, तो वहाँ का वातावरण इतना सुंदर है कि वहाँ की बरसाती घटा में गिर जाने का आनंद कुछ अलग ही होगा। शायद हम महसूस ना कर सके, लेकिन वे आनंद लेने का मजा वे जो महसूस कर रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि अभी वे घटा उन पर आएगी और उन्हें भी भिगो देगी। घटा ऊपर से घिर जाए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ, मैं तुझसे कमजोर नहीं हूँ। यानी कि घटा व्यक्ति पर छा जाए और व्यक्ति को छोटा कर दे तो वे अलग ही अनुभव होगा, ऐसा लेखक कह रहे हैं। और कहते हैं कि वे घटा से जैसे बात कर रहे हैं कि आ और मुझे भिगो दे, मैं तुझसे बिल्कुल कमजोर नहीं हूँ। यानी कि वे बरसाती घटा में गिरने के लिए तैयार है। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था, यानी कि खूब तेज हवा चल रही थी, लेकिन घटा इतनी तेजी से उनके पास नहीं आ रही थी। यानी कि बरसाती घटा जो दूर उन्हें दिखाई दे रही थी, वे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन हवा का जोर बहुत था। हालांकि तूफान उठा हुआ था, यानी कि हवा का जोर इतना था कि मानो जैसे तूफान उठा हुआ हो। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। यानी कि बार बार बिजली गरजती थी और उनके कारण धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। यानी कि धरती और आकाश के जो अंत का भाग, यानी कि छेड़ो जो આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો दोनों બંને છેડા છે જાણે કાંપ ઉઠતી थी, यानी कि ध्रुजी उठता था। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी, यानी कि वारंवार सामेना चित्रपट એટલે કે સામે જે દ્રશ્ય હતું એમાં बिजली कौंधती, यानी कि बिजली चमकती હતી। और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। यानी कि प्रकाश की वजह से, बिजली की वजह से जो प्रकाश होता था, वे प्रकाश की वजह से सारी चीजें, सारा दृश्य सामने का था, वे एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में यह बूंदे मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। यानी कि वे बरसती घटा उनकी तरफ जैसे धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो उस वजह से लेखक खुश थे कि अभी धीरे धीरे वे बूंदे उन पर भी गिरेगी और ये बिजलियों का कहर जो उन्हें सामने चित्रपट पर दिखाई दे रहा है, तो वे सारा कहर अभी उन पर भी टूटेगा, यानी कि उन पर भी बिजली गिरेगी।
मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था, यानी कि वे उनसे डर नहीं रहे थे कि उन पर बिजली गिरेगी या उन पर बरसाती घटा छा जाएगी। वे खुद बाहें फैलाकर उस बरसाती घटा का सामना कर रहे थे और उसे अपने आप पर लेने के लिए वे तैयार थे। मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहां का तहां ठिठक गया और दूर ही परकटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। यानी कि जितनी आतुरता से, जितने उत्साह से वे उस बरसाती घटा की राह देख रहे थे, लेकिन उन तक वे घटा पहुंचे उससे पहले ही हवा एकदम रुक गई। अचानक जो हवा चल रही थी वे भी अचानक रुक गई और बढ़ता हुआ तूफान भी जहां का तहां ठिठक गया, यानी कि रुक गया। बढ़ता हुआ तूफान भी एकदम शांत हो गया, जैसे पर कटे पक्षी की तरह, यानी कि किसी पक्षी के पर कट गए हो और वह जैसे तड़फड़ा कर नीचे गिर पड़ता है, उसी तरह पूरा तूफान भी रुक गया। बिजली की सांसें रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। यानी कि बिजली की सांसें तो रुक गई, लेकिन उसके साथ साथ जैसे लेखक ऐसा अनुभव कर रहे थे कि उनकी सांसें भी रुक गई, क्योंकि बरसाती घटा में आनंद लेने के लिए वे इतने आतुर थे कि उनके साथ साथ जैसे वे भी आसमान में भ्रमण कर रहे हो। तूफान का जोर उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी, यानी कि तूफान भी अपना जोर तोड़ देता है और उसी के साथ लेखक भी जो जोर में थे, जोश में थे, उनका जोश भी कम हो जाता है। मैं उसका बराबर का नहीं हो सका, यानी कि जितना तेज तूफान था, जितनी तेज वे बरसाती घटा थी, तो उतने तेज लेखक नहीं हो पाए। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में एक दो बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। यानी कि कहते हैं कि वो ऐसा क्षण था, वे होटल की खिड़की पर बैठे बैठे वे वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का ऐसा क्षण उन्होंने महसूस किया था कि वो कहते हैं कि गुलमर्ग में रहते हुए लोगों के जीवन में ऐसे क्षण किसी न किसी रूप में जरूर आए होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहां रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींच कर वहां ले जाता है, यानी कि मुद्दत यानी कि लंबो समय। तो कहते हैं कि तभी तो वहां काफी समय रहने के बाद भी लोग फिर से वहां जाने को तरसते हैं, फिर से वहां जाने का मन होता है, क्योंकि वहां का प्राकृतिक सौंदर्य इतना सुंदर है कि लोग खुद को उस प्राकृतिक सौंदर्य का एक हिस्सा समझने लगते हैं। यानी कि बार बार वहां जाने की लोगों को इच्छा भी होती है। वरना वहां है क्या, एक खुला सपाट मैदान, जहां ज्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। यानी कि कहते हैं कि जिसने अगर प्राकृतिक सौंदर्य को वहां पर नहीं देखा तो वहां और है भी क्या, खुले सपाट मैदान और जहां पर ज्यादातर गोल्फ खेली जाती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहां जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? क्योंकि जो व्यक्ति प्राकृतिक सौंदर्य का महत्व नहीं समझता तो क्या वहां बार बार वहां क्यों जाना चाहता है? तो क्या सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए ही वहां जाते हैं? नहीं, जो लोग वहां बार बार जाना चाहते हैं वे शायद वहां के प्राकृतिक सौंदर्य से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि चाहे वहां कोई ऐसा स्थान न हो कि जहां घूमने जा सके, लेकिन वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए, वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए वहां पर बार बार जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां का प्राकृतिक सौंदर्य एक एक क्षण पर अपना वातावरण बदलता है, एक एक क्षण एक नया अनुभव, नया रोमांच खड़ा करता है, जिसकी वजह से लेखक भी गुलमर्ग बार बार जाना चाहते हैं और हमें भी वहां पर एक बार जाना चाहिए।